हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती है जिसको समझना इंसानों के बस में नहीं है। हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान और पौधों में क्या समानताएं हैं। ठीक है, किस वजह से जो है पेड़ पौधे जो होते हैं इंसानों के जैसे ही होते हैं, लेकिन ये बात इंसान नहीं समझ पाते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर पौधे और इंसानों में क्या समानताएं हैं। इंग्लिश में A levels of organization cells to be organism. There is an important topic. We are talking about the smallest unit of the life in any living organism. If there is a cell, the cell has a very complex system of its organs. Each organ is the concerned with their particular task of activity, and each activity contributing to the total performance of the cell. Thus, there is a division of labor at the cellular level. As the evolution progressed and the large organism appeared with their environments and the number of cells in the body, it has become necessary that the bodily is a functions are there distributed and among different groups of cells are tissue, even among to the groups of tissue. Such a higher and higher stage or groupings are known as their level of organizations, and this level are followings. The first is cellular level of organizations. Friend, cellular level of organizations mean the organizations of the activities by the different organs in the single cell. Example, white blood cells are a green cells of a leaf. There is a white blood cell in human and plants is the green cells of a leaf. There is a cellular level of organization. And second is tissue level organization. What do you mean to tissue level organization? They are aggregate of the cell of same origin and having same functions. Example, the surface epitheliums of our skin are the dividing cells at the root cap of a plant. Friend, the human body is the surface of epitheliums of our skin and plant is the roots caps of plant. There is a tissue level organizations, and third is a tissue system organizations. A generally seen in a plants where two or more different cell types combine to perform a particular activity. So example, the vascular tissue is the veins and the leaves as a consisting of xylem and phloem for transfer of water and food materials. Friend, there is a human body is a veins of a and the leaves of their is a xylem and phloem to water and food transfer for the materials of different part of plant. So this is the organization. And fourth is a organs level organizations. Organ levels organization mean the distracted or recognizable part of body composed of a variety of tissue and the performing one or more special functions which contribute to the well being of organism. Example, liver in animals and the leaf in a plants. Friend, the liver in animals there is the release of enzymes, and the leaf in a plant there is the making of food for the plant. The next is organ system. Friend, what do you mean to the organ system? Here, combination of a set of organs, all of which are the usually developed to one general function. Example, respiratory system. The respiratory system consists of lungs, tracheas and diaphragm in a man or another is a short system consisting of leaves, stem and branches in a plant. Friend, here respiratory system in a human body they are used for the lungs, tracheas and diaphragm. And the other side is in plant there is a use of respiratory system or leaves, stem and branches. There is a organ system organization in a both plant and animal. Their last is the organs. Their organs organization.
There are complete individual made of different organ system. Example, man, monkey and mustard plant. Friend, here the man monkeys is a completely developed for different organ system, and the mustard plant also development of fully. There is a organs or organization. So there is a complete of our chapter. Come to the Hindi. दोस्तों जो हमारा अब जो हम करने जा रहे हैं संगठन के स्तर कोशिका से लेकर जीव तक, देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है पाँचवें चैप्टर का जो है संगठन के स्तर कोशिका से लेकर जीव तक। देखिए कहते हैं कि कोई भी जीव में जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यानी संगठन होता है जिसका अपना अपना एक डिपार्टमेंट होता है, अपना अपना कार्य होता है, और उसी बेस पे जो है चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो दोनों में जो है अपना कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। तो ये आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन सा ऑर्गन किस डिपार्टमेंट के साथ मैच करता है ह्यूमंस और प्लांट्स में। तो इससे ये हो जाता है कि आपको समझ होता है कि जो ह्यूमन बॉडी में संगठन काम कर रहा था, तो वही जो संगठन कौन सा संगठन है जो प्लांट में काम करता है। आपको पता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में सारे एनर्जी स्टोरेज होते हैं, ठीक है। तो इसको डिफरेंट पार्टों पर कौन पहुंचाता है, जैसे प्लांट भी अपना भोजन बनाता है, तो कौन चीज़ है जो है उसको डिफरेंट पार्टों में जो है भेजता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस संगठन के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौन सा चीज़ जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्टों में जो है ट्रांसफ़र कर रहा है और इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तो चलिए देखते हैं क्या है। कहते हैं हमने इस जो पाठ के आरंभ में जो हमने पढ़ा था कि किसी भी सजीव प्राणी में जीवन की लघुत्तम इकाई अर्थात कोशिका से किया था। ये कोशिका ही जो है क्रियात्मक और जो है यानी जो है आपका कार्य करता है। यानी जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होता है, अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कोशिकाओं में आपने अंगों का एक बड़ा जटिल तंत्र होता है, क्योंकि आपको पता ही है कोशिकाओं में जो है अंगों का जो है जटिल तंत्र होता है, जिसमें प्रत्येक तरह के जो है आपको पता है कि प्रत्येक तरह के अंगक जो है विशेष कार्य तथा क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। यानी सबका जो है अपना कार्य होता है और उसी कार्य से जो है सारे के सारे संबंधित होते हैं, सारे के सारे अपना क्रियाकलाप करते हैं, और प्रत्येक क्रिया कोशिकाओं के सकल कार्य और निष्पादन में अपना योगदान देते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। अंततः कोशिका स्तर पर जो है श्रम विभाजन दृष्टिगोचर होती है, यानी यहाँ पर जो है कोशिका स्तर पर जो है श्रम विभाजन दृष्टिगोचर होती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। जैसे जैसे जो है जैव विकास होता जाएगा वैसे वैसे बड़े और उसमें भी बड़े जीवों को उत्पत्ति होती गई है, जिसका जो है शारीरिक असंख्य कोशिकाओं से बना था। आपको पता ही है दोस्तों कि जैसे जैसे इंसान का डेवलपमेंट होता है उनके ऑर्गन्स भी जो है वो भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो बच्चों के स्टेज होते हैं उसमें जो है सारे ऑर्गनों का डेवलपमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे समय के साथ जो है ऑर्गन का डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। कहते हैं कोई चीज़ जो है दोस्तों डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, डायरेक्ट नहीं बन सकता है, उसमें धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होती है, और जो है अगर कोई उसको गलतियों को बताए तो उसको जो है आगे सुधारा जाए। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि ये तो जीवन है, ठीक है, तो उसमें कहते हैं धीरे धीरे जो होती है बढ़त बनती जाती है। इसका शारीरिक असंख्य कोशिकाओं से बना था, क्योंकि हमारे शरीर जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम लोग आते हैं। तो कहते हैं कि जो लाखों असंख्य कोशिकाओं से हमारा शरीर जो है निर्माण हुआ है। इसके साथ ही यह आवश्यक होता है कि शारीरिक संबंध कार्य कोशिकाओं को अलग अलग समूह करे अथवा उत्कों को अलग अलग ऊतक समूह करे। देखिए दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि घर में जो है डिफरेंट लोग जो है डिफरेंट कार्य करते हैं। हमारे शरीर के भी ऑर्गन जो होते हैं एक ही ऑर्गन सारे कार्य नहीं करते हैं, सभी ऑर्गन का अपना डिपार्टमेंट होता है, अपना संगठन होता है, और वो अपने संगठन के अनुसार जो है कार्य करते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा ना, ये कहते चाहे शरीर हो चाहे जीवन हो, ठीक है, एक संगठन की तरह कार्य करना होता है। अगर आपका लीवर काम नहीं करता है तो वैसे भी शरीर खराब हो जाता है, आपका किडनी काम नहीं करता तो ऐसे भी खराब हो जाता है। तो इन सबको कार्य सुचारू रूप से करने के लिए हर एक अंग जो है दूसरे अंग पे डिपेंडेबल होता है, तभी जाके कार्य संपन्न होता है। तो ऐसे जैसे आपको पता है कि हमारे जो जीवन है भाग दौड़ की ज़िंदगी में जो है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि देखिए कि बच्चा ही पढ़ता हो, कहते हैं बच्चे के साथ माँ बाप भी पढ़ते हैं। मान लीजिए अगर आपके माता पिता सपोर्ट सिर्फ कर रहे हैं कि आप पढ़ लो बच्चे पढ़ लो, और वो आपको डांटेंगे नहीं कि पढ़ ले बच्चे,
ठीक है, सिर्फ वो पढ़ा रहे हैं, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं ना, हर एक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी को डेवलपमेंट करने में। तो उसी तरह से हमारे शरीर के हर प्रत्येक ऑर्गन का काम होता है, चाहे प्लांट में हो चाहे इंसानी शरीर में हो, हर एक अंग का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तभी जो है शरीर रूपी जीवन को जो है हम चला पाते हैं, नहीं तो हमारा शरीर कार्य करना ही बंद कर देगा। तो ये की बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि सभी ऊतकों के जो है अलग अलग समूह कार्य करता है, और इस प्रकार की ऊंची और उससे भी ऊंची अवस्था को संगठन स्तर कहते हैं। यानी सारी चीज़ों को जो बनाता है उसके हम संगठन स्तर कहते हैं। अब यहाँ पर देखने योग्य बात ये है कि जो संगठन है किसका काम क्या है। तो चलिए हम देखते हैं किसका कार्य क्या है। सबसे पहले तो यही आता है कि संगठन का कोशिकीय स्तर। संगठन का दोस्तों कोशिकीय स्तर एक अकेली कोशिका के भीतर विभिन्न अंगों द्वारा क्रियाओं को संगठन है। उदाहरण श्वेत रुधिर कोशिका अथवा पत्ती की हरी कोशिका। देखिए, श्वेत रुधिर कोशिका जो होती है हमारे शरीर में होने वाली हर एक बीमारी के लिए वो फाइट करती है, ठीक है, और जो है भोजन को जो है डिफरेंट जो है पार्टों को तक करती है। उसे जो है पत्ती की हरी कोशिकाएं जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। ह्यूमन में अगर कहो तो श्वेत रुधिर कोशिका यानी WBC करता है, और जहाँ प्लांट आता है उसमें जो है आपको पता ही होगा पत्ती की हरी कोशिकाएं जो है कार्यशील होता है, क्योंकि ये कोशिका स्तर कहलाता है। उसके बाद ऊतक स्तर में क्या होता है, सामान्य उद्भव और सामान्य कार्य वाली कोशिकाओं का पाया जाना। उदाहरण हमारी त्वचा का सही एपिथेलियम। देखिए, हमारे त्वचा का जो एपिथेलियम ऊतक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे पौधे के जो है मूल गोप्स यानी रूट कैप पर पाई जाने वाली विभाजनकारी कोशिकाएं, ठीक है, जो आप देखोगे रूट कैप पे जो विभाजनकारी कार्य होता है वो सेम एपिथेलियम की तरह ही कार्य करता है। यानी दोनों का कार्य जो होता है हमारे शरीर में जो है एपिथेलियम टिश्यू जो सतर होती है वो उस पर कार्य करता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है ऊतक तंत्र। देखिए, ऊतक तंत्र क्या होता है, कहते हैं आमतौर से पौधों में देखने को मिलता है जहां कोशिकाओं के दो या अधिक प्रकार मिलकर एक किसी विशिष्ट प्रकार को संपन्न करती है। जैसे पत्ती का संवहनी ऊतक सिराएं आदि, जो जल तथा खाद्य पदार्थ को परिवहन के लिए एंजाइम एवं फ्लोएम का बना होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि जैसे आप देखते हो कि जो पौधे होते हैं उसमें जल तथा जो खाद्य पदार्थ को जो है ले जाने के कार्य कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम करता है, ठीक है। तो संवाहन ऊतक सिराएं जो होती है इंसानों के शरीर में ले जाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। तो कहते हैं सबका अपना कार्य। आपको पता है कि ब्लड जो होती है, ब्लड में जो है सारे ऑक्सीजन मिले होती है, विभिन्न बॉडी के पार्टों में जाके जो है शरीरों को एक सुचारू रूप कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है। जिस प्रकार से जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं खाना लाने ले जाने के सबके कार्य दोनों के दोनों मिलके करते हैं। उसके बाद है अंग सतह। देखिए, शरीर का एक सुस्पष्ट अविक्षय पहचान योग्य भागों को विविध ऊतकों का बना होता है और ऐसे एक या अधिक कार्य संपन्न भी करता है जो जीव की कल्याण के लिए अपना योगदान भी देता है। उदाहरण प्राणी का यकृत और पौधे की पत्तियां। देखिए, यकृत का काम क्या होता है, हर तरह के एंजाइम करना देना और उससे जो है खाना पचता है और खाना पचेगा तो एनर्जी हमें मिलेगा। पौधे की जो पत्तियां होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन बनाती है और पौधों को डिफरेंट जो है भागों तक पहुंचती है। तो देखिए, जहां हमारे लिए प्राणियों में युक्ति है वहीं भी जो यानी यकृत का लीवर्स कह सकते हो इंग्लिश में, यकृत होता है प्राणी यानी लीवर होता है इंसानों में, और पौधे के लिए जो है पत्ती यानी लीफ जो होता है इसके कार्य करता है। तो दोनों का कार्य एक जैसा ही है, ठीक है, सिर्फ हमारा ये प्राणी में आ जाता है वो पौधे में आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है अंग तंत्र। देखिए, अंग तंत्र क्या होता है, अंगों के एक समुच्चय का एक ऐसा समूह जो सभी मिलकर आम तौर से एक सामान्य कार्य संपन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मानव में जो है श्वसन तंत्र। देखिए, सांस लेने में सिर्फ हमारा फेफड़े का ही काम नहीं होता है, उस श्वास में जो है फेफड़े यानी फुफ्फुस का काम आता है, श्वसन नली का काम आता है, मध्य पट्टल यानी डायाफ्राम इत्यादि का बना होता है। तो सारे चीज़ों को जो होता है अपना एक योगदान देता है। जैसे पौधों में अगर देखोगे तो पौधा स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता है, पौधे का पर्वत तंत्र जो होता है जिसमें पत्तियां, स्तंभ, शाखाएं आदि सारे सम्मिलित होते हैं, सारे के सारे मिल के जो है पौधे के लिए भोजन तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है, जिसमें कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है
अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। सेम ऐसे ही मानव श्वसन तंत्र में भी होता है। सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक जाती है और वहाँ जब ब्लड रहती है उनको जो है वो ऑक्सीजन मिला के जो है हृदय तक भेजती है। तो दोनों का कार्य जो होता है कहीं हद तक एक जैसा ही होता है। इसलिए जो है मानव और जो पेड़ पौधे जो है जीवित प्राणी में आते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जीवित होते हैं। अगर इसको आप गहराई से समझोगे ना तो कहते हैं पौधा भी हमारे जैसे ही होते हैं, क्योंकि जो परमात्मा ने दोनों की रचना किया है, इंसानों का और पौधों का, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। सारा मैक्सिमम चीज़ सोच लो मिलता जुलता है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी चेंज रहती है। तो कहते हैं कि इन चीज़ों को देख के हम ये कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें जो है सच्ची में ज़िंदगी होती है और वो भी तड़पती है। जब आप उसको नष्ट करते हो, काट देते हो, तो आप शायद आपको समझ नहीं होगी कि उसको भी शायद दर्द होता होगा। ठीक है, क्योंकि जब वो सांस ले सकती है, अपने सारी क्रियाएं मनुष्य की जैसा ही करती है, तो जब उसको काटा जाता होगा या वो टूटती होगी तो कितना दर्द होता होगा, शायद इंसान इस बात को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो कहते हैं एक साइंटिस्ट ने भी इस पर रिसर्च किया था कि जैसे उन्होंने जहर दिया था और उन्होंने देखा था कि पौधों में एक जहर डाला था, तो जैसे पौधे इंसान तड़पते हैं वैसे पौधे भी तड़प रहे थे जब उन्होंने एनालाइज किया। तो ठीक है, ये है छोटे क्लास में कहीं देखना मिल जाएगा आपको, चैप्टर में, हिंदी के चैप्टर में था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उन्होंने साइंटिस्ट ने खोज किया था और मेरा भी यही विश्वास है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जितना हमारे अंदर दर्द है उतना पेड़ पौधों के अंदर भी दर्द है। हम जितना पोल्यूशन फैलाते हैं वो गुस्सा हम पे करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा वो कैसे करेंगे उनको समझ नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुदरत सभी के साथ है और कुछ आप लोगों के साथ ऐसा विनाशकारी लीला रची जाती है जो आप जो है खुद भी नहीं समझ पाते हो कि ये लीला क्यों रची गई है। फिर जो है कुछ प्राकृतिक ने हमें संकेत दिया है। अब देखिए, एक कोरोना वायरस भी था, इसी बेस पे था। कहते हैं कि हम पौधे को जो है पृथ्वी का लंग्स कहलाती थी ना, कि पृथ्वी का जो लंग्स होता है पेड़ पौधे हैं, और हमारे जो है कोरोना वायरस कहाँ पर अटैक किया? लंग्स पे। तो इसका मतलब है कि कुदरत हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रही है और शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम लोग समझ जाते तो शायद हमारी दुर्दशा ऐसी नहीं होती। और आपको क्या लगता है आने वाला समय में इससे भी भयंकर घटनाएं घटने वाली है, जिसको शायद किसी को भी ज्ञात नहीं है, और ऐसी घटना घटेगी जिसका कोई भी ना तो इलाज होगा ना कोई सलूशन होगा। ठीक है, फिर जाके हम जो होंगे पुराने पद्धति को ही अपनाएंगे। चलिए, ये कहते हैं, इसलिए मैंने बोला क्योंकि कहते हैं हमारा शरीर और पेड़ पौधा काफ़ी मिलता जुलता ही यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है। अब हमारा इसमें लास्ट पॉइंट जो है जीव। देखिए, विभिन्न अंग तंत्रों में मिलकर बना एक शकल विशिष्ट जीव, उदाहरण मानव बंदर अथवा सरसों का पौधा। अगर मानव बंदर लेते हो तो सरसों का पौधा जो है एक अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें जीव कहलाते हैं और अंग तंत्र जो है मिलकर एक सकल विशिष्ट जीव बनाते हैं। सरसों का पौधा में भी ऐसा ही प्रतिक्रिया होती है जैसे मानव और बंदर में होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जो है हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम जो है आगे जो है 6 चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, NIOS के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो टॉपिक आपके लिए है वो टॉपिक देखिए और उसका जो है फ़ायदा उठाइए और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई जो है अच्छे से करना, यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो है विषय है और यही आप लोगों के लिए कर्तव्य भी है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्यों?
क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।